Welcome to campus program. Today we're going to take you to City Institution of Law, Shahpur near Lambda, Jalandhar. City Institute of Law, Jalandhar got established in year 2017 with three different courses by the City Group of Institution. With objective of the Faculty of Law is to prepare students for careers in the legal profession and related fields. The institute is approved by the Bar Council of India and affiliated by Guru Nanak Dev University, Amritsar. This institute currently offers two UG courses, BA LLB and BCom LLB. The faculty offers undergraduate that provide a solid foundation in various areas of law, including constitutional law, criminal law, civil law, international law, administrative law, and more. Faculty members within the Faculty of Law are experienced legal professionals, including lawyers and legal scholars. The curriculum offered by the Faculty of Law combines theoretical instruction with practical training, internship to court, and industrial visit to BCom LLB and BA LLB students. Mr. Charanjit Singh is the chairman of this institution. With the hard working of chairman Mr. Charanjit Singh, the institution rise to a higher level. So let's visit City Institute of Law, Shahpur, Jalandhar. ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੰਜਾਬਲਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਨਾਲ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਰ ਨਾਲ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਚੰਨੀ ਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੋਲਨ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਿਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਜੀ, ਔਰ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ CT ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, CT ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਇਰਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਦਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲੀਗਲ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਵ ਕੋਰਟਸ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਕੈਂਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਜਨਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਰਸ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਥਿਕਸ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਲਾਅ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕੋਰਟਸ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਟੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ AI, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਡ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, 2 ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਕੂਲ, ਸਿਟੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸਿਟੀ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ 2 ਕੈਂਪਸਿਸ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੈਂਪਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ। ਮਕਸੂਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਟੀ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ
ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ। जो क्रिएशंस चन्नी सर ने की और उसको आकर जैसे उनके 2 बेटों ने उसको इतनी आगे ले गए, क्योंकि वो लोग वर्ड वाले लोग हैं, वो एआई वाले लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें ना हमारे डॉक्टर मनबीर सिंह जी हैं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और ये इसमें ना डेली अपने आप को अपडेट रखते हैं और हमें भी साथ में अपडेट रखते हैं। और आज के टाइम के अंदर एआई के बगैर तो सर्वाइवल है ही नहीं, उसके बगैर चलता ही नहीं। और उसके साथ साथ हमारे जो वाइस चेयरमैन हरप्रीत सर, वो तो साथ में हमें इंफ्रा के रिलेटेड और रिलेटेड सारा कुछ अपडेट करते रहते हैं। उनकी सपोर्ट के बगैर तो हम चल ही नहीं पाते, हमारा सर्वाइवल ही नहीं। तो हम सब मिलके एक टीम में काम करते हैं और हम नेक्स्ट लेवल तक इसको लेके जाएंगे। सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हम हैं निहारिका जी के साथ, जो यहाँ पर लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निहारिका मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि कैसी वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी जो आजकल देखने को नहीं मिल रही है, ऐसी लाइब्रेरीज, और चन्नी सर का जैसे विजन था कि हमने जो चीज़ करनी है वो अप टू डेट करनी है, और आज भी उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि हमें बढ़िया से बढ़िया बुक की जो हमें प्रोवाइड हो, वो यहाँ से आकर ले सकते हैं। और जो बच्चे ये चाहते हैं, जो यहाँ से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, चाहते हैं कि हम बुकें देनी है, कि हमारी बुकें कोई ना कोई और भी पढ़ सकता है, तो वो भी यहाँ पर अलाउड है। उनको भी हम इनवाइट करते हैं, जो बच्चे देना चाहते हैं और जो लेना चाहते हैं, दोनों के लिए। हाँ जी सर, ऐसा ही है। जो बच्चे हमारे बुक्स पढ़ लेते हैं और जैसे उनकी डिग्री ख़त्म हो जाती है, वैसे तो एक लॉयर की बुक्स से कभी नाता टूटता नहीं है। जब एक बच्चा जो फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, हम तभी उन्हें समझा देते हैं कि बेटा ये आपने अब अपनी लाइब्रेरी बनानी है जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी। एंड उसमें वो हेल्प लेते हैं हमारी इस लाइब्रेरी से, जहाँ पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चे, या फिर जहाँ पे जिनको एक से ज़्यादा बुक कलेक्शन की रिक्वायरमेंट लगती है। क्योंकि हमें भी ये होता है कि एक चीज़ हमने एक बुक से पढ़ ली, फिर हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे ऑथर्स के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू द BCI गाइडलाइंस। यूनिवर्सिटी के हिसाब से हमारा पूरा रिक्वायरमेंट डन है। एंड इसके साथ साथ हमारे पास डिजिटल एक्सेस भी है। जितने भी जो डिजिटल ऑनलाइन हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, उसके थ्रू बच्चा इन PCs पे बैठ के अपना, हम जो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं या यूथ पार्लियामेंट एंड वेराइटी ऑफ कॉम्पिटिशन्स जो हम करवाते हैं, उसमें डेली रोज़मर्रा के जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो यहाँ से वो देख लेते हैं। ये अभी हमारी 2025 के लेटेस्ट हमारे पास बुक्स आई हैं, केसेस की बुक्स हैं जो लेटेस्ट हमने 2025 की हैं सारी। एंड सही बात आपने कहा है, विद द विजन ऑफ आवर वर्दी चेयरमैन सर, वो भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मैनेजमेंट टेक्स इंटायर इंटरेस्ट, उनको होता है कि हमारे पास जितनी भी लेटेस्ट एडिशंस हो हमारे बच्चों के पास होनी चाहिए। तो हमारी लाइब्रेरी हर 2 महीने के बाद उसमें कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स आते रहते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, ये लेटेस्ट हमारी एडिशंस हैं। इसके साथ साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मैन्यूस्क्रिप्ट है, ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट है, वो भी हमने मंगाया है, ताकि बच्चे उससे भी उसको देखें, समझें। एंड जो हमारा कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी, तो उस मद्देनज़र वो उसको पढ़ सके और समझ सके। तो हमारे ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को मना करते हैं, बच्चे भी उसको इशू करा के उसे पढ़ सकते हैं। निहारिका जी, जो MBS यहाँ पर दिया गया है, जैसे अलग से रीडिंग रूम है, हालांकि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन यहाँ पर भी और भी ईज़ के साथ जो बच्चे यहाँ पर आकर, हम देख सकते हैं कि वाईफाई यहाँ पर अटैच्ड है, और हर तरह से बच्चों के लिए एक प्रैक्टिकल वर्क के लिए, हम प्रैक्टिकल वर्क ही बोलेंगे इसको। एग्जैक्टली सर, क्योंकि लॉ जैसे हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को प्रैक्टिकल अप्रोच मिले। रेगुलर इनकी इंटर्नशिप्स लगती हैं, कोर्ट विजिट लगती हैं। अभी रिसेंटली लास्ट सैटरडे को हम जो नेशनल लोक अदालत थी, हमारे बच्चे वहाँ भी गए थे। तो वहाँ जाने से क्या होता है कि ऑनलाइन उनको एक्सेस भी मिलना चाहिए, ताकि वो डे टू डे दे शुड बी अपडेटेड। अब बच्चा जुडिशरी की तैयारी करता है, IAS IPS की तैयारी करता है, तो उस लाइब्रेरी से हमने उन्हें एक डिफरेंट सा रीडिंग जोन दिया हुआ है। यहाँ बच्चा बैठ के अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकता है। एंड आप देखिए वहाँ पे ई जर्नल्स, उनके पासवर्ड सारे हमने लिखे हुए हैं, कि बच्चा चाह के जो व्हाटएवर ही वांट्स वो यहाँ से देख के उस साइट पे जाके जो भी उन्हें नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स लगती हैं वो उसे फुलफिल करवा सकता है। निहारिका जी, जैसे
हम देख सकते हैं कि कभी भी मिस्त्री नहीं हटते, जब भी हम आते हैं कोई ना कोई चीज़ नई यहाँ पर बनी होती है। अभी हम देख सकते हैं कोई ना कोई अमेंडमेंट होती रहती है। क्या कहना चाहेंगे? सर एग्जैक्टली मेरे को यहाँ काफ़ी अरसा हो गया और मैंने तो यहाँ पे काफ़ी चेंजेस देख लिए हैं, बट दिस इज़ वेरी गुड। लाइफ नहीं तो मोनोटोनस हो जाती है। हम टाइम टू टाइम हम डिपार्टमेंट की जो भी हमें लगता है कि हमें इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए या इंटरनल कोर के लिए वी शुड वर्क आउट, तो वो करवाते रहे हैं। अभी लेटेस्ट हम टाइल्स लगा रहे हैं क्योंकि पुरानी तो पिछली थोड़ी पुरानी हो गई थी, तो दिस इज़ द लेटेस्ट वर्क। ये यहाँ पे अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, क्योंकि लॉ में काफ़ी डिसेबल्ड पर्सन्स भी होते हैं, बिकॉज जुडिशरी में स्पेशल कैटेगराइज किया जाता है, तो ये व्हील चेयर का एरिया उनके लिए है एंड दिस इज़ फॉर द नॉर्मल पेडेस्ट्रियंस। निहारिका जी, क्या कहना चाहेंगे कि लीगल एड क्लिनिक जो आपका केवल ये नहीं कि बच्चों को सिखाने के लिए, कोई भी मजरूम यहाँ पर आता है अपनी फरियाद लेकर आता है तो उसको भी हम लोग गाइड करते हैं कि कैसे आपने अपने केस को आगे फॉरवर्ड करना है, आगे प्रोसीड करना है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो कैसे हम लोग उसकी मदद करते हैं। सर ये लीगल एड कैंप बनाया, लीगल एड क्लिनिक बनाया ही उन लोगों के लिए गया है जो खुद जुडिशियल कोर्ट्स जाके अपनी सर्विसेज या फिर वकीलों की सर्विसेज नहीं ले सकते हैं। लीगल एड क्लिनिक्स हर लॉ कॉलेज में होता है, बट हमारा क्यों डिफरेंट है, क्योंकि बाकी जगह कागजी कार्रवाई होती है, वी हैव प्रैक्टिकली लीगल एड क्लिनिक। टाइम टू टाइम हमारे लीगल एड कैंप्स लगते हैं जहाँ पे हम जो लोग कोर्ट जाके या वकील को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनकी हेल्प करते हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हमारा उनके साथ भी टाई अप है एंड टाइम टू टाइम वो भी यहाँ आके अपने कैंप्स लगाते हैं और हम भी उनके पास जाते हैं। अब इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें आ जाती हैं महिलाएं, SC, ST, पिछड़ा वर्ग, बच्चे, बुजुर्ग। जो लोग फाइनेंशियली एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लीगल एड क्लिनिक की हेल्प से कोर्ट तक अपना फरियाद लेके जा सकते हैं। ये हमारी क्लासेस हैं, इनमें फिक्स्ड बेंचेस हैं विद अ कैपेसिटी ऑफ 60% इन ए क्लास। हम वाइट बोर्ड है हमारे, हर क्लास में हमारे प्रोजेक्टर्स लगे हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं सारी। अभी तक तो आपने मूवीज़ में देखा होगा, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, बट ये हमारा मूड कोर्ट रूम है एंड इट हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़ जो एक मूड कोर्ट रूम में होनी चाहिए। ये हमने अभी डिपार्टमेंट लेवल पे मूड कॉम्पिटिशन करवाया था, ये उसकी फ्लेक्स है। पीछे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है विच इज़ द बैकबोन ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लगाई हैं विद फादर ऑफ नेशन एंड द पर्सन हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे वी हैव अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 60 पीपल, 60 से ज़्यादा बच्चे यहाँ बैठ जाते हैं एंड हर क्लास वाइज, हर सेमेस्टर वाइज हम एक्टिविटीज़ कराते हैं। बच्चे यहाँ आते हैं ताकि कल को जब वो कोर्ट में जाएं तो उनके अंदर किसी भी चीज़ को लेके, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेके कभी भी उनके मन में कोई विचार ना आए। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू एडवोकेसी, जुडिशियल सिस्टम के पास लेके जा सके। सुप्रीम कोर्ट जजेस हुए हैं, चीफ जस्टिस हुए हैं, ये दीज आर द लैंडमार्क पर्सनैलिटीज़। तो हम बच्चों को इनसे भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो भी अपना एक ऐसा आइडल चूज़ करे जिसमें वो लीगल फील्ड में आगे से आगे तरक्की कर सके। एंड इन सब के साथ वी हैव ऑलवेज द सपोर्ट ऑफ आवर मैनेजमेंट, स्पेशली आवर चेयरमैन सर। उन्होंने हमेशा ही लॉ को बहुत प्यार से, बहुत तरीके से रखा है। हमें कभी भी किसी चीज़ की कभी कोई प्रॉब्लम या कमी आने ही नहीं दी। सर, जो एनर्जी ਲੈਵਲਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਾਈ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਟੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਨੈਵਰ ਸਲੀਪਸ। ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? Thank you, sir. This is Dr. Megha Midha, and I'm the coordinator of City Institute of Law, and work
like you said, sir, sir also talked about the career transformation and how we work as a team. So that is very important, that we working as a team are focusing on the strength of the students for building their careers. Career transformation, as the name suggests, we are actually focusing how the students, they can in their future build themselves, build their careers, and like create wonders. Not only they can create the name for themselves, for our college, but for the nation also. So thank you, sir. निहारिका मैडम, जैसे आपने सभी कैंपस को विजिट कराया इतनी पॉजिटिविटी के साथ, कर तो आप रहे थे, वही बात है, नहीं कर तो आप रहे हो, आपने इतना प्यारा जो है अपनी एंकरिंग की और आपने सारा दिखाया, लेकिन नाम हमारा हो जाना है कि ये पंजाब प्लस के ऊपर आ रहा है। आपके हम पहले तो भारी हैं, और क्या कहना चाहेंगे कि ये पॉजिटिविटी, हर बंदा पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि हमें जो लॉ वाले होते हैं थोड़ा सा मतलब लोगों के मन में होता है कि जो लॉ करते हैं उनमें थोड़ा सा जो एटीट्यूड। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। लॉ मेकर्स आर द बेस्ट लॉ ब्रेकर्स, मैं पहले तो ये कहूँगी। तो हमें पता होता है कहाँ कैसे बोलना है। And how City Institute of Law is different from others. The thing is, हमारे बच्चे जो यहाँ पे हैं, इनको theoretical के साथ साथ हम practical aspect पे बहुत ज़्यादा हम ध्यान देते हैं। Rather, जितने भी colleges, universities को मैं जानती हूँ, उनके comparison में मैं कहूँगी we are the only one जहाँ पे first semester onwards हम internships पे बहुत focus करते हैं। अभी भी बच्चों के जब एग्ज़ाम खत्म होंगे, we are in the pipeline और हमने internships बच्चों की प्लान कर दी है। बाकी colleges में सिर्फ फाइनल ईयर वाले बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट वी हैव टाई अप्स विद मेनी एडवोकेट्स, मेनी लीगल फर्म्स, इवन इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नॉट इवन इन पंजाब, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश के भी बच्चे हैं हमारे पास, एंड साउथ साइड के भी बच्चे हैं। हम वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स में भी बच्चों की इंटर्नशिप लगाते हैं। दैट इज़ द ओनली बिग प्लस पॉइंट जो हमें बाकियों से बहुत बेहतरीन बनाता है। इसके साथ साथ हम नेशनल मूड कोर्ट्स भी करवाते हैं, जिसमें हमारे बच्चे खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे भी काफ़ी कॉलेजेस की टीम्स आती हैं, जिससे हमारे बच्चों को एक और बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिल जाता है। थैंक यू। तो सभी क्या कहेंगे, ईस्ट और वेस्ट? सिटी इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट? सिटी इज द बेस्ट।